Hello students, good morning everyone. Today I am going to continue chapter number 5, arithmetic progression. In arithmetic progression, you have already learnt about what is a progression and how can we identify the given sequence is an AP or not a AP. Okay, so in this chapter today I am going to talk about to find first and sum of an AP. Okay, so let us continue this chapter. Let the first term and common difference of an AP is small a and small d respectively. Then we know that the first term of AP is small a. ओके, स्टूडेंट्स आप जानते हो अगर मान लेते हैं कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो स्मॉल a और स्मॉल d है, तो हम सभी जानते हैं किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म स्मॉल a से इंडिकेट किया जाता है. तो दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP स्मॉल a एंड सेकंड term of the AP is to be obtained by the sum of A and D. Okay. Similarly, the third term is obtained by D on adding it. Okay. तो स्टूडेंट्स आप सभी जानते हो किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को स्मॉल a से इंडिकेट करते हैं और इसके बाद ये जो टर्म है उस टर्म को फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट टर्म में इसके कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, तो हमें इसके बाद वाले टर्म ऐसे प्राप्त होते चले जाएंगे. तो हम लिख सकते हैं किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म स्मॉल a है, तो देन सेकंड टर्म इज इक्वल टू a प्लस d. ओके. सिमिलरली थर्ड टर्म इज इक्वल टू a प्लस d and again d. Okay, so or it is also represented as a plus 0 into d. Okay, and this is a plus 1 into d, and this is represented as 1 plus 2 into d. Okay. Similarly, if we want to find the fourth term of the AP, then it is obtained by adding d on the third term. Okay, or we add d in first term at 3 times, so we get a plus 3d. Okay. Similarly, these terms are also represented as a plus 1 minus 1 into b. The second term can be written as a plus second term means second minus 1 into d. Okay. Similarly, we can represent the third term as a plus 3 minus 1 into d, and the fourth term is a plus 4 minus 1 into d.
Similarly, if we want to find out the nth term on the AP, then nth term is equal to a plus d plus d plus d plus dash plus n times plus n times, which is represented as a plus n minus 1 into d. ओके, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर फर्स्ट टर्म स्मॉल a और कॉमन डिफरेंस d है तो उसका फर्स्ट टर्म स्मॉल a, सेकंड टर्म a plus d के बराबर, थर्ड टर्म a plus d और a plus 2d। ओके, तो इस तरीके से अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट और उसके कॉमन डिफरेंस हमें पता होते हैं तो हम उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रत्येक टर्म 1 बाय n इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको हमने पैटर्न के रूप में यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है कि इसका फर्स्ट टर्म स्मॉल a, तो इसे हम a plus 0 into d और फिर a plus 1 minus 1 into d के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड टर्म को हम a plus 1 into d और it is also represented as a plus 2 minus 1 into d, where 1 2 3 4 and that is n, it is the number of terms of the AP। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 that is n, ये उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर जैसे हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो वहाँ पे 1 minus 1, सेकेंड टर्म तो 2 minus 1, थ्री टर्म थर्ड टर्म इज 3 minus 1, फोर्थ टर्म 4 minus 1। तो सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड nth टर्म तो दिस इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बेसिक पैटर्न बनता चला जा रहा है। तो इसी के आधार पे अगर nth टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a plus n minus 1 into d। तो एंड आप ये भी जानते हैं कि सेकंड टर्म को स्पेशली a2 से इंडिकेट करते हैं एंड थर्ड टर्म इज इंडिकेटेड एज a3, फोर्थ टर्म इज रिप्रेजेंटेड एज a4, सो nth टर्म इज रिप्रेजेंटेड एज an। तो वी गेट फाइनली a formula for to find out the nth term of an AP, that is therefore an is equal to a plus n minus 1 into d। So this is the formula for find out the nth term of an AP from the first। Okay, okay students, I hope you will you understand about to find out the first nth term of an AP। मुझे उम्मीद है कि आप इस फार्मूले को समझ गए होंगे कि इस फार्मूले को किस तरह से बनाया गया है। ओके, तो इसी के बेस पर अगर हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टू फाइंड उसका nth टर्म फाइंड करना हो वो भी लास्ट से, तो इसके लिए भी हम फार्मूले को बना सकते हैं। तो इसी बेस पर हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं कि टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एन AP। स्टूडेंट्स, यदि अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें अंत से nth टर्म फाइंड करना हो तो भी इसके लिए हम इस फार्मूले को बना सकते हैं इस फार्मूले की तरह। जैसे इसके लिए हम मान लेते हैं कि लेट द लास्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP is small l and small d respectively, then an is equal to
then an is equal to L minus n minus 1 into d. So this is the formula for find out the nth term from the last of the AP. Okay, तो an is equal to L minus n minus 1 into d. तो ये फॉर्मूला किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंत से nth टर्म फाइंड करने के लिए है। और यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा है an is equal to a plus n minus 1 into d। तो इस फॉर्मूले से हम किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के शुरू से nth टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि शुरू से nth टर्म फाइंड करने के लिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म हमें बताया है और उसका कॉमन डिफरेंस बताया है, तो हम फर्स्ट टर्म में इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। इट मींस आगे की और टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वहीं में अगर हम किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंत से चलना शुरू करें, अंत से शुरुआत की तरफ आना है, तो अंत वाले टर्म को अगर हम यह मानते हैं तो उस अंतिम टर्म में से d को माइनस करते चले आएंगे, तब जाके हमें उसके पहले वाले टर्म्स में फाइंड होंगे। तो इसीलिए लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वहां पे ये माइनस है, और जो शुरू से nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है यहाँ पे प्लस कर दिया है। तो आप समझ गए होंगे जहाँ पे स्मॉल a जो है किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को इंडिकेट करता है और स्मॉल l उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लास्ट टर्म को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे लिया गया है। ओके, तो इन दोनों फार्मूले के बेस पर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2 उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज से आपको बताते हैं किस तरह से आप इस फार्मूले की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ see the exercise 5.2. In this exercise, we take the question number 1. Okay, in question number 1, there is a table. In this table, fill in the blanks in the following table. Given that small a is the first term, small d is the common difference, and an the nth term of the AP. Okay, so you need to find nth term in question number first and common difference in question number second and the first term in question number third. Okay, so we take first part of this question. So in this question we write here the question, fill in the blanks in the following table. Given that small a is the first term and d is the common difference the nth term of an AP. Now everyone see the table. Here is small a, small d, and a. See the question number first. Small a is equal to 7, d is equal to 3, n is equal to 8. To find out the nth term. Next, number second, a is equal to minus 15, d is unknown, and n is 10, a n is equal to 0. So friends,
Okay, now put the value of a, n and d in this formula to find out the nth term. So a, that is equal to 7 plus n, which is 8 minus 1 into d is equal to 3. Okay, now look here, this is an is equal to, sorry, look here, yes, en is equal to 8, it is given. So it means while we putting the value of 8 value of n in this formula, we find out the eighth term of this AP. So here is an, but here is 8. So a8 is equal to 7 plus 8 minus 1 is 7. 7 into 3. This is 7 into 3. So 7 plus 21 is equal to 28. So we find the eighth term of this AP is 28. Okay, स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि an के लिए फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू b। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू ऑलरेडी 8 दिया गया है, तो n के प्लेस पर जैसे ही 8 पुट करेंगे तो ये an जो है a8 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि हमें इस सर्कुलेटिंग प्रोग्रेशन का nth टर्म नहीं फाइंड करना, बल्कि 8th टर्म फाइंड करना है, क्योंकि n की वैल्यू ऑलरेडी 8 है। तो जैसे ही 8 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा, a8 मींस 8th टर्म। तो यहाँ पे आप 8 an n की जगह पर 8 पुट करेंगे,